Students, how are you? Now, the class 12 Physics Chapter 3 Current Electricity Lecture 1. The current electricity, this chapter just going to start. You have read class 10th also this chapter electricity, and in this chapter you will study electric current, and also you will study drift velocity, cells in series and parallel, Ohm's law, internal resistance of cell. Resistance depends on which factors, Kirchhoff's rule, and you will apply Kirchhoff's law for Wheatstone bridge principle, meter bridge. These things you will study. Okay, and this is just you can start electric current. Electric current you can use symbol I, capital I or small I. Electric current. एज यू नो दिस इज एक कंडक्टर, ये ए बी क्या है, कंडक्टर है. इसको अगर बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दें तो क्या चार्ज फ्लो करेगा, क्यों चार्ज यहां से यहां तक फ्लो करेगा. यहां से यहां तक फ्लो करने में टाइम कितना लगता है, टी टाइम. तो दिस यू हैव रीड दिस. यहां से यहां तक चार्ज जो है ये दिस टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, क्यू चार्ज. यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा, क्यू बाई टी. तो क्या हो गया, ये फ्लो ऑफ चार्ज इन टी टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. Okay, so in this way you can say the definition, the rate of flow of charge through a conductor is known as electric current. इसको I is equal to क्या होगा, Q by T, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, Q is equal to NE, और I Q के प्लेस पर we can write NE और T. So this I is equal to Q by T, rate of flow of charge, NE by T. This formula you will remember, it will help in solving numerical questions और minutely calculus के फॉर्म में कर सकते हो. I is equal to limit delta t tends to 0, delta q है delta t, this you can write down dq by dt. In this way also you can study. Now SI unit of current is ampere. Okay, SI unit of current is ampere. Then how will you define 1 ampere current? This unit of electric current is ampere. SI unit of current is ampere. ये से डिनोट करते हैं. How will you define 1 ampere? 1 ampere definition, I is equal to Q by T. I को कितने एम्पियर में मेजर करते हैं, चार्ज को कूलम में, टाइम को सेकंड में. तो क्या हो जाएगा 1 कूलम पर सेकंड. How will you define? The charge current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. Definition देख सकते हो, current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं. करंट इज स्केलर क्वांटिटी. करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इवन देन इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ. ओके, एंड ऑल्सो दिस 1 ampere definition also you will study in chapter moving charges and magnetism. There also you will study with the help of another formula. मालूम है जब भी किसी भी यूनिट का डिफिनेशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ formula. Now with the help of this formula you can define 1 ampere, and then there you will study another formula. With the help of that formula you will define 1 ampere current. Just I am writing formula here. In the case of this is equal to mu by 4 pi epsilon naught 2 I1 I2 by D. अब इस formula के help से you will define, first you will derive this formula. दो पैरेलल प्लेट, दो कंडक्टर्स हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो बिटवीन टू कंडक्टर्स फोर्स विल एक्ट. फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 करंट फ्लो करेगा दो कंडक्टर में, दोनों का सेपरेशन D है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू विल डिफाइन 1 एम्पियर करंट. तो क्या हो गया, एक तो इस फॉर्मूला के हेल्प से 1 एम्पियर करंट डिफाइन करोगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू विल डिफाइन 1 एम्पियर करंट इन मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म. दैट चैप्टर है मैग्नेटिज्म. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. नाउ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारा कंडक्टर है और कंडक्टर को सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है. कंडक्टर क्या हो, ए बी कंडक्टर है,
तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये कंडक्टर में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर दर्शा रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज कितना है माइनस ई, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी vt। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इन ए कंडक्टर, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्टेड इन ए कंडक्टर in opposite direction of electric field is known as drift velocity। drift velocity क्या है, average velocity of an electron moving या drifting in a direction opposite to the direction of electric field is known as drift velocity। कैसे कहोगे, drift velocity may be defined as, या it is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नाउ दिस यूर वेड द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या होगा, ये पढ़ा है फॉर्मूला E इज इक्वल टू F बाय Q, और Q क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस E है, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस E और E। अब दिस चार्ज जो है, चार्ज मूव कर रहा है, इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मूव कर रहा है। जब चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय m, A इज इक्वल टू F बाय m, और F के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, माइनस E by this m। So this is the acceleration produced now drift velocity vd इक्वल टू क्या होगा, u अब प्लस a, और टाइम जो है, टाइम को हमने क्या लिखा, a t है, ये फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू u प्लस a t, इसको यूज किया। अब ये vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, जब हमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और प्लस ए के प्लेस पर दिस यू कैन राइट डाउन माइनस ई अब बाय m। अब ये टाइम जो है, ये टाउ लिखते हैं, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम है, ये टाउ क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हो। यहां से हो जाएगा क्या, vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय m। अब ये स्केलर फॉर्म में क्या होगा, मैग्नीट्यूड यू कैन टेक, vd मॉड अगर है मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ई टाउ बाय हम कंसीडर कर सकते हो, मॉड ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, स्केलर फॉर्म में ले लिया, तो देन यू विल गेट व्हाट इज द फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, फॉर सिंपलिसिटी यू कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू e टाउ बाय m। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ जैसे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और मोबिलिटी ऑफ होल्स होता है। सेमीकंडक्टर में करंट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बोथ आर द कैरियर्स ऑफ द करंट, लेकिन यहाँ पर कंडक्टर में है ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ करंट। तो यहाँ मोबिलिटी हो गया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। How you define mobility? Mobility may be defined as the drift velocity per unit electric field is known as mobility.
ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वीडी बाय ई। वीडी के प्लेस में वैल्यू पुट कर दिया ई टाउ बाय एम, और ये ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हम ई को कैंसिल कर सकते हैं। तो देन यू आर गेटिंग ई टाउ बाय एम, या mobility is equal to E tau by m. This way you have read. Now you will study Ohm's law. Ohm's law you will study. Ohm's law, V is directly proportional to I. ओम्स लॉ क्या है, रिलेशन है किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर करंट पढ़ा है, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसके लिए फंडामेंटल लॉ नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या है, एटलीस्ट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये ओम्स लॉ क्या है, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया, इसका वेरिफिकेशन है। अब फ्रॉम ओम्स लॉ यू कैन फाइंड आउट रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये इसका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल आल्सो यू विल डू इन द लैब। हाउ यू राइट स्टेटमेंट, इन शॉर्ट यू कैन राइट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या इसको स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर potential difference across the conductor, potential difference across conductor is directly proportional to the electric current flowing through it, और दैट इज कर सकते हो, क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लिखोगे, V इज इक्वल टू R I। What is R? R is the constant of proportionality. This constant of proportionality is known as resistance of a conductor. Where कर सकते हो कि R है, R is equal to क्या, constant of proportionality. This constant of proportionality is known as resistance of a conductor. यहाँ पर ये R is equal to क्या हो गया, R is equal to V by I। रेसिस्टेंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इससे भी डिफाइन कर सकते हो। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। दिस वे यू कैन डिफाइन। एंड ऑल्सो रेसिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, कोई कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो होता है, उस कंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या हो गया, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। जब करंट फ्लो करेगा कंडक्टर से, वायर से, तो वायर का प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, विच विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। द अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। अब कैसे अपोज करेगा, सपोज करो ये कंडक्टर है, कंडक्टर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल से बना हुआ है। अब इस कंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन विल रन थ्रू द कंडक्टर। जब कंडक्टर से रन करेगा तो क्या करेगा, इससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल पार्टिकल से बना हुआ है, तो ये अदर पार्टिकल से क्या होगा, कोलिजन होगा। तो कोलिजन होगा, कंडक्टर गेट्स हीटेड। तो जब अदर पार्टिकल है, जब अदर इसमें रन करेगा तो अदर पार्टिकल से क्या कोलाइड होगा। इसका मोशन जो है, इसका वेलोसिटी जो है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मोशन ऑफ द दिस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अपोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल। ये दूसरे ढंग से समझो, जब असेंबली होती है या ब्रेक टाइम में, अगर जैसे ग्राउंड में कोई स्टूडेंट नहीं है, अगर कहा जाए तुमको दौड़ो, एक राउंड लगा लो, इजीली यू कैन टेक राउंड। जब ब्रेक टाइम है, स्टूडेंट्स क्या होगा, डिस्पर्स हो गया। जब वहां कहेगा दौड़ने के लिए,
तो क्या होगा, जब दौड़ोगे तो सामने दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा, फिर अपना पाथ को थोड़ा चेंज करना होगा, फिर दौड़ोगे फिर दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा सामने, मीन्स यू विल बी अपोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है तो कंडक्टर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन will feel disturbance by the presence of other molecules present in the conductor. Opposition. So this is known as the resistance is the property of conductor which opposes the flow of current. या दूसरे ढंग से मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हो, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर will be defined as the ratio of potential difference to the current, इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। और ये रेसिस्टेंस का यूनिट जो है ओम होता है। Now SI unit of R resistance is 1 ohm. How will you define 1 ohm? R is equal to V by I. R क्या होगा 1 ohm, V 1 volt, I 1 ampere. Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it when potential difference of 1 volt is applied across it. इस तरह से हम लोग डिफाइन। अब वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ यू विल स्टडी। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करोगे? यूजिंग ओम्स लॉ यू विल फाइंड आउट रेसिस्टेंस। ओके, सो दिस यू कैन से वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए क्या है, एक हमारा ये रेसिस्टर है, इसका पीस ऑफ वायर है, ये इसका रेसिस्टेंस R है, और इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। ये वोल्ट मीटर है, इसके पैरेलल वोल्ट मीटर, और एक आमीटर कनेक्ट, कहीं भी सर्किट में वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द रेसिस्टर। आमीटर को सीरीज में कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियोस्टेट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, और आमीटर को कहीं भी, ये सपोज करो ये हमने आमीटर को कनेक्ट कर दिया, अब इधर से ये RS वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया। अब सेल कनेक्ट कर सकते, बैटरी लगा दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, निगेटिव टर्मिनल, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका बैटरी का, और ये की कर सकते हो। अब यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, ये करंट क्या होगा, I करंट विल फ्लो, ये पॉजिटिव है, दिस विल बी पॉजिटिव, ये निगेटिव है, निगेटिव, यहां भी हो जाएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब ये जैसे ऑब्जर्वेशन टेबल बना दोगे, ये सीरियल नंबर है, I है और V है, और यह है R इज इक्वल टू V बाय I। ये रीडिंग लोगे 1 2 3 4 5 रीडिंग लोगे। सपोज करो ये हमने की को क्या किया, ऑन किया, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, तो इससे हमने V का रीडिंग ले लिया। V का सपोज करो कितना 1 वोल्ट, यहाँ भी क्या हो गया 1 एम्पियर, ये एम्पियर में हो गया, इधर वोल्ट में हो गया। अब दूसरा, यहाँ से रियोस्टेट से थोड़ा सा इसको मूव किया, पोटेंशियल डिफरेंस करंट भी चेंज हो गया, तो ये V का रीडिंग ले लिया, V कितना हो गया 2 वोल्ट, इधर एम्पियर से करंट क्या हुआ 2 एम्पियर। फिर इसको रेसिस्टेंस को थोड़ा चेंज किया, तो V और I दोनों चेंज हो जाएगा, तो V कितना होगा 3, और इधर I भी 3 है। फिर इसको चेंज किया थोड़ा सा, V और वेरिएबल रेसिस्टेंस को चेंज किया, तो V और I में भी चेंज होगा। सपोज करो 4 है। अब ये हमारा R1 R2 R3 इस तरह से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये V बाय I, तो 1/1 कितना हो गया 1 ओम। यहाँ क्या हो जाएगा 2/2 1 ओम, और 3/3 1 ओम। इस तरह से हमारा जो ये जो रेसिस्टर है, ये रेसिस्टेंस का कांस्टेंट है, इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम हो जाएगा इसका। इस तरह से इफ यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन V और I के बीच, इफ यू आर प्लॉटिंग ग्राफ, द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, तो दिस ग्राफ स्ट्रेट लाइन shows V directly proportional to I। ठीक है, ये V directly proportional to I। From this graph you can find out this slope also will give the resistance of a conductor. Now class 10th you have read,
द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, क्या क्या फैक्टर है रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस किस पर फैक्टर पे दिखाता है, 4 फैक्टर्स है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, जितना लेंथ बड़ा होगा रेसिस्टेंस उतना अधिक होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जितना वायर जो थिकर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना अधिक होगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा। और रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, सबका रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। और ऑल्सो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर राइज होगा तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो विल इंक्रीज। सो ये फैक्टर्स हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एल, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितना लेंथ बड़ा होगा रेसिस्टेंस। दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ए, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और 4 फैक्टर्स है, और क्या है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जैसा जो भी जो मटेरियल है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। इसी तरह से अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है। और ये 4th कह सकते हो, टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर पर। देन ये रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टी को कहा सकते हो टी। अब ये एक डिफिनेशन है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी या इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं रो से। ये देखो इस सिग्मा है, ग्रीक लेटर है, और ये रो, सिग्मा यूज करते हैं समेशन के लिए, एडिशन के लिए, और ये रो जो है, ये रो जस्ट वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो ये कांस्टेंट लिखोगे, क्या होगा, L बाय A। If you remove proportional sign, if you combine both, then it will be R directly proportional to L by A। अब ये proportional sign कटाओगे तो रो हो जाएगा। रो क्या है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। हाउ विल यू डिफाइन रो? This rho is the constant of proportionality. This constant of proportionality is known as specific resistance or resistivity। क्या कह सकते हो, where rho is the constant of proportionality, constant of proportionality, constant of proportionality, and is known as resistivity, resistivity of a conductor। अब ये रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करो, ठीक है, रेसिस्टिविटी हाउ यू डिफाइन, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। यहां क्या हो जाएगा, इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर और A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन यू विल गेट, अब L के प्लेस पे 1 मीटर, A के प्लेस पे मीटर 1 मीटर स्क्वायर, तो देन यू विल गेट R इज इक्वल टू रो 1 R इज इक्वल टू रो, या रो इज इक्वल टू R हो जाएगा। देन हाउ यू डिफाइन रो, resistivity of a material of a conductor is equal to resistance of unit length and unit area of cross section of the conductor। ये resistivity कई बार पूछा गया है,
या कम से कम जब प्रैक्टिकल देने जाओगे बोर्ड का क्लास 12 का, तो एक्सटर्नल विल आस्क डिफाइन रेसिस्टिविटी एंड व्हाट विल बी यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी. फर्स्ट यू कैन डिफाइन क्या रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर. रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is equal to resistivity of a conductor is equal to resistance of a conductor of unit length, the conductor of unit length and unit area of cross section and unit area of cross section. इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी में भी डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा. एसआई यूनिट ऑफ रो रेसिस्टिविटी इज क्या हो जाएगा. ओम मीटर होता है. हाउ इट विल बी ओम मीटर. जस्ट यू कैन सी. देखो R इज इक्वल टू क्या हो गया रो L बाय A. अब ये यूनिट किसका यूनिट रेसिस्टिविटी का यूनिट. तो देन दिस रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या होगा RA बाय L. अब ये रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम. और ये क्या है एरिया है. एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर. ये कैंसिल हो जाएगा. व्हाट विल यू गेट ओम मीटर. तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर. इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा. क्या पढ़ा. करंट पढ़ा. इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड ओम्स लॉ. And also you have read the factors on which factors resistance of a conductor depends, and then you have read specific resistance and unit of specific resistance. Thank you for watching. Thank you very much.